वॉइस पीछे आ रही है? तो जस्ट अगेन so for the last 18 years I have been mentoring this history and the optional paper and general studies together, and just I got request from Mishra sir and finally I decided to start from here. So before going to start history, we have lot of myth about history, how to study history, because for the last 4-5 years UPSC is gradually changing the trend. As suppose anybody can tell me the definition of history. What do you mean by history? When the term history comes in your mind, oftenly we suppose it is a very boring subject. Whenever term history comes in your mind, how you feel about it? What do you mean by it? Why we are studying history? At least it is very essential. Any answer please? Why, at least simply what do you mean by history? इतिहास नहीं सही है, बिल्कुल सही कहा, यहीं से बोला जाएगा. हिंदी में आपने बताया तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? जैसे आपने उसमें ऐसे बोला, इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या? ये वाला इतिहास तो नहीं. Any answer please, ना? What do you mean by history? जैसे पॉलिटिकल study of the past, only past or as suppose as the word Hindi इतिहास, इति मतलब ऐसा हुआ था. तो traditionally as we believe history is simply arrangements of events into chronological order. It is supposed to be traditionally history be supposed like this. And who is called as the father of history? 6th century BC. Fine, he was a Greek historian. First time he wrote a book by the name Historica. But guys, what is important here? Since we are preparing, you all are preparing for civil services, UPSC के इतिहास में इतिहास का मतलब कुछ और भी हो जाता है. Here we say history is simply arrangement of events. इतिहास मतलब ऐसा हुआ था. If we say like this, history means arrangements of events into chronological order. But in UPSC, for the last 3-4 years, you may surprised to know, UPSC has a very broad vision how to interpret the questions, how to frame the questions. Just 2 years back, a question was arised in the mains especially. No doubt in prelims you can easily go through. But in the mains, this ऐसा हुआ था. यूपीएससी ने कहा है कि इसमें क्वेश्चन कैसा बनाया गया. द वे द यूपीएससी इज प्रिपेयरिंग क्वेश्चन हुआ भी नहीं है तो भी यूपीएससी का इतिहास है. जो घटनाएं इवेंट्स गोइंग इन द पास्ट, इवेंट्स गोइंग इन द प्रेजेंट, इवन गोइंग इन द फ्यूचर. जस्ट 2 years बैक द क्वेश्चन वाज अराइज्ड. सपोज गांधी वाज मिसिंग इन द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, व्हाट कुड बी द टाइपोलॉजी ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल मूवमेंट? दैट randomly how you can write a good answer without, because the whole history is revolving around Gandhi. From 1920s onwards, whatever history we are having, Gandhism is the whole history. Gandhi became a charismatic authority. So guys, sometimes it becomes very challenging how to write these answers. तो यहाँ पर इतिहास ऐसा हुआ भी नहीं, फिर भी यूपीएससी करी. बताइए क्या लग रहा है आपको? गांधी नहीं होते तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप क्या होता? 2 साल पहले यूपीएससी ने पूछा है. और लास्ट ईयर आया है, हाउ यू कैन जस्टिफाई गांधीज्म इन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ कंटेम्परेरी सोसाइटी. तो कहीं ना कहीं से इसका मतलब समझ गए यूपीएससी का मोटिव क्या है. यूपीएससी इज नॉट चेकिंग प्योरली नॉलेज. यूपीएससी प्योरली नॉलेज चेक नहीं कर रही है. यूपीएससी इज गोइंग बियॉन्ड वन स्टेप बियॉन्ड नॉलेज. विजन, हाउ यू हैव इंटरप्रेटेड द हिस्ट्री, हाउ यू हैव टेकन द मीनिंग फ्रॉम हिस्ट्री. तो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो डोंट बी वेरी बुकिश, गो थ्रू द बुक्स एंड ट्राई टू सर्च आउट how the transformation is going on. So here, this class is simply introductory class. Here I will explain you how to go through the history, ancient, medieval, modern, because this is very essential. We suppose history is a very boring subject. Right from childhood we have stigmas about history. So here, just I will clarify all these things. So now it means now it is very clear. History is not like this only. We can say like this. What is history then? History is not only arrangement of events into chronological order. Then what is history? It is also understanding of forces of changes and forces of continuity which together bring transformation in society. That is not only definition. Just I will give you some examples. So what is history? It is not only arrangement of events into order. Then what is this? Then what further it is? It is understanding of these twin forces, one is this, second is forces of continuity. Because why we are wasting our time in history? Simply because we know it is not wasting our time. How from past to medieval, from modern, how transformation was going in the different structures of society. It is very important. It helps us
to frame our future also. So see how we can understand history. It is not only arrangement of events into order, then what it is, we can say like this, it is also understanding of these two forces, changes, continuity, which together bringing transformation in society. And history may we have only 4 transformations in society: social, socio-cultural, you can say, political, economical and cultural, you can say. कल्चर को आप चाहे अलग बना दीजिए, कल्चर में ले चला जाता है. हिस्ट्री में सिर्फ 4 चीज़ होती हैं: सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, यू कैन से पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल. कल्चरल मीन्स रिलीजियस आल्सो. तो whenever you go through the ancient history, medieval history, whatever it is, try to identify these forces lying in the base. Once you develop this habit, I can assure you, history will not be challenge for you. You can easily write the good answers in the mains also. So now it happens. Now the problem is, what is the force of change and what is the forces of continuity? Automatically, can you tell me an example of forces of changes? How the history is changing? Like today, today we have parliament. Today we have movements like this and this. Today we have Supreme Court. Supreme Court is giving decisions. How the history of Kashmir has changed? It means today we have democratic structures, parliamentary bodies, judicial bodies. Movement is going on. So these all can be called as forces of changes. For example, some inventions. I means invention. Some invention may be there. Some discovery may be there. Some movement may be there. Some law may be there. Some nature of a state, like democratic state, communist state, whatever it is. So these all, in every chapter, try to identify any of them is there or not. Then what is forces of continuity? Indian society, even today, although we are witnessing globalization, right from 2000 onwards, not 2000, 1990s onwards, we have witnessed drastic reforms. And today Indian society is experiencing what? Globalization. But even there, Indian culture had maintained its presence. Why? Because these forces are equally strong. What is forces of continuity? Your customs, your values, your traditions. भारत वैश्वीकरण के बाद भी आज भी संस्कृति बची हुई है. ये क्वेश्चन से लास्ट ईयर यूपीएससी में मेंस में आया था. Why Indian culture had not decayed for the last 5,000 years? It is very surprising, amazing. पिछले 5,000 सालों से भारतीय संस्कृति का क्षय नहीं हुआ है, जबकि विश्व की सभी संस्कृतियां कहां पर हैं? म्यूजियम में. इसमें ऑल अलाइंग इन द म्यूजियम. तो समथिंग इज देयर. समथिंग मीन्स वेरी. दिस इज द रीजन. इंडियन कल्चर के अंदर ये फोर्स भी साथ में चलता है. तो वी आर अडेप्टिंग टू द चेंजेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वाई वी हैव नॉट बेट ब्रेक डाउन? बिकॉज वेन एवर चेंजेस आर गोइंग ऑन, वी आर अडेप्टिंग इट सेल्फ विदाउट ब्रेकिंग आवर सेल्फ. इसमें क्या आता है? इसमें कस्टम्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, they are equally strong. The day one where India witness breaking of this system also, then we can become an open society. But it is next to impossible. So I think you're getting this point. So it means now see, this is simply, it means whenever you go through a history, ancient, medieval, modern, try to identify any of this. This is just I'm giving you an example. See, first example is coming from ancient history. Just we have discussed what is force of changes, some invention, discoveries, law, this and this. Just take this example. दो साल पहले हिस्ट्री के लास्ट ईयर ही आया है. हिस्ट्री ऑप्शनल में क्वेश्चन आ गया. कभी जीएस में भी आ सकता है, आर्ट एंड कल्चर में आ जाएगा. बिकॉज यूपीएससी का जो स्पेक्ट्रम है बड़ा वाइड है. तो ये भी एक फोर्स ऑफ चेंज है. और आप जस्ट इमेजिन कीजिए, इफ आयरन कुड नॉट बी हैव बीन डिस्कवर्ड, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ ही कुड बी लिविंग. तो इम्पॉसिबल था. तो डिस्कवरी ऑफ आयरन, लोहे की खोज की कही जा रही है. कैन यू टेल मी द फर्स्ट मेटल यूज बाय द मैन? कॉपर. वेरी गुड. Copper was the first metal used by the men. Then gold and silver all is coming, but iron is coming very late. And you know what is copper? Copper is very flexible. You cannot think about surplus agriculture. Some type of subsistence agriculture was going on. That means discovery of iron was a turning point in the history of India. We know it, but we are unable to connect this with the transformation. Last year history के optional paper में क्वेश्चन ये आ गया था.
how this discovery of iron technology was a turning point and how it had influenced the structures of society. Everything will be influenced, you know. तो देखिए हम कैसे इसको जोड़ा जा रहा है, फोर्स ऑफ चेंज कैसे जोड़ेंगे, आपको सरप्राइज होगा. Approximately around 800 years of history of ancient India is revolving around iron. उसका बेसिक थीम आयरन ही है. आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ द आर्यन वैदिक पीरियड, नाम सुना होगा आपने, आर्य काल, वैदिक काल बोलते हैं उसको. व्हाट इज द टाइम स्पैन ऑफ द वैदिक पीरियड? एनीबॉडीज टाइम स्पैन ऑफ द वैदिक पीरियड? वेरी गुड, वेरी गुड. Sorry please. That is it is like this. Total Vedic period. In between we have, yes, come in. In between, you know, we have, historians have classified this period into two parts: early Vedic, later Vedic. Early period is also called as Rig Vedic period. So just keeping in mind, guys, it is how many years interval? 900 BC में. आपको मालूम होगा उल्टा गिनते हैं हम लोग. AD में हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिनते हैं. तो almost it is around 900 years. Vedic period is around 900 years, and the first 500 years, that is from here to here, it is almost 500 years. Iron got discovered in the Indian subcontinent. So just see how this whole society you can study with that basic concept of iron. In the early Vedic period, early Vedic means from here to here. In this period, see how we will frame the history. Before and after. Sorry. So first it is early Vedic period, and post 1000 is called as later Vedic period. So when you go for NCERT or whatever books you go, we simply cram it. What is society, what is polity, what is economy, and just I had discussed what is history, understanding of forces of changes along with the transformations. इतिहास को पढ़ते समय ध्यान रखा जाए कौन से ऐसे बल हैं जो इतिहास को बदल रहे हैं, उनको जोड़ने का कैपेबिलिटी धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा. जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है, आयरन गॉट डिस्कवर्ड समथिंग हियर. व्हाट वाज सोसाइटी बिफोर आयरन? इट मीन्स व्हाट वाज सोसाइटी बिफोर इन द अर्ली वैदिक पीरियड. तो सी हाउ वी विल डिस्कस हियर. कैन यू टेल मी व्हेन सोसाइटी इज नॉट हैविंग आयरन, व्हेन आयरन वाज मिसिंग, कॉपर वाज देयर, बट यू नो व्हाट इज कॉपर? कॉपर इज हाईली फ्लेक्सिबल. यू कैन नॉट थिंक अबाउट सरप्लस एग्रीकल्चर. तो बिफोर डिस्कवरी ऑफ आयरन, agriculture was known to the Aryan, we cannot deny, but the agriculture was subsistence, you know, only subsistence type. It was not surplus. So see how we will discuss here. First we are discussing economy. Simply by demarcating iron got discovered. Before iron got discovered, early Aryan society was pastoral. You know what is pastoral? Cattle rearing was the main occupation, and you know what is cattle rearing? You are not having a surplus. Whatever surplus you are having, whatever milk and curd you are having, they will decay in 24 hours. So in this society, economy was very simple. Agriculture as such, surplus has not evolved. Society was cattle rearing, pastoral society, nomadic society. In this society, economy was very simple. Automatically you can think about this. Once economy becomes surplus, only then city will take birth. Unless your economy is not surplus, city can never take birth. शहर कब बनते हैं? जब कृषि अर्थव्यवस्था आदि शेष होती है. इन अर्ली आर्यन सोसाइटी एज सच सरप्लस एग्रीकल्चर वाज मिसिंग. क्यों? हमने कह दिया आयरन नहीं है तो खेती कहाँ से हो जाएगी? भाई खेती है, काम चलाओ खेती है. मेन ऑक्यूपेशन वाज कैटल रेयरिंग एंड मिल्क, कर्ड एंड घी. यू नो दे वर देयर. यू कैनॉट थिंक अबाउट एनी डोमिनेंट इकोनॉमी. द इकोनॉमी वाज वेरी सिंपल एंड कैटल वाज अ सोर्स ऑफ स्टेटस. आप देखें लड़ाई भी जो होती है कैटल्स को लेकर होती है. आप देखेंगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अर्ली आर्यन किंग्स वर फाइटिंग फॉर द not land. Battle was going not for land, battle was going for cattle, because cattle was the source of status. Everything is revolving around economy, you know. तो इकोनॉमी वॉज वेरी सिंपल. और आपको मालूम है जब इकोनॉमी सिंपल है तो करेंसी की जरूरत ही नहीं है हमको. करेंसी कब आएगी? जब इकोनॉमी ग्लोबलाइज हो जाएगी. जैसे आज आप देखें
आज हमारी इकोनॉमी ग्लोबलाइज हो गई, उस समय इकोनॉमी लिबरलाइज कब होगी? जब आयरन आ जाएगा। तो यहाँ पर इकोनॉमी इज वेरी सिंपल बिकॉज इट इज नॉट सरप्लस, देयर इज नो नीड ऑफ मनी एंड यू आर वेल अवेयर। जब इकोनॉमी बहुत सिंपल होती है, हमारे पास टाइम बहुत सारा होता है। जैसे देखिए आज टाइम नहीं है हमारे पास, टुडे वी आर गोइंग फॉर ऑनलाइन बैंकिंग बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। आप देखें 3 साल अभी 4-5 साल पहले से क्या हो रहा है भारत में, बिकॉज टुडे वी आर विटनेसिंग ग्लोबलाइजेशन। और जब मनी आएगा तब क्या होगा? लिबरलाइजेशन आ जाएगा। तो बिफोर आयरन इकोनॉमी वॉज वेरी सिंपल, देयर वॉज नो सरप्लस, अर्बन सिटीज वर मिसिंग, विलेज सोसाइटीज वर देयर, बार्टर सिस्टम वॉज अ मोड ऑफ एक्सचेंज एंड कैटल्स वर सपोज टू बी द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो जस्ट इकोनॉमी वॉज वेरी सिंपल, नो money economy. And what about society? See, I am simply giving you example. Society means, what was the framework of society? Just think in this way. Can you tell me, anybody is aware this वर्ण system and caste system? नाम तो सुना ही आपने, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था. In early Vedic society, if a question is arise, because UPSC asks MCQ 1, 2, 3, 4, 5. So just if a question is arise, this caste system or one system was there in the early Vedic society? Anybody, yes or no? One system, Varna system was present in the Rig Vedic society. ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? हाँ, लेटर वैदिक हो जाए। अर्ली वैदिक में हम बोलते हैं इनकरेक्ट, हम रट लेते हैं उसको, हम कहते हैं भाई किताब में लिखा है इसलिए होगा, क्योंकि आपने इसके इतिहास को ऐसे जोड़ा नहीं है। जिस दिन आप जोड़ लेंगे, आपको डाउट भी होगा तो भी आप सही आंसर लगाएंगे। आप लॉजिक लगाएंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे? ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप थोड़ा इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। जिस सोसाइटी में इकोनॉमी सरप्लस नहीं है, इकोनॉमी अधिशेष नहीं है, समाज में टकराव कब होता है? जब इकोनॉमी में सरप्लस होता है। ये ह्यूमन नेचर भी है। अगर क्लास में 25 लोग बैठे हैं और यहाँ 25 लिम्का रखी हुई, तो लोग 25 में संघर्ष नहीं होगा। जहाँ 30 आ जाए तभी संघर्ष। संघर्ष कब होता है? जब एक्स्ट्रा होता है। ये ह्यूमन नेचर भी है। अगर 25 लोग बैठे हैं, 25 चीज़ें हैं तो आराम से बांट लेंगे। जहाँ 26 होगा संघर्ष को, 26 किसके पास जाएगा? जो ताकतवर होगा, जो बुद्धिमान होगा, वही छीनेगा। आप समझ गए मतलब? सोसाइटी में जब सरप्लस होता है तभी स्ट्रगल होता है। समाज में जब अधिशेष होता है, संघर्ष तब होता है। और मनुष्य ईश्वर की ऐसी कृति है ना, ह्यूमन ह्यूमन बीइंग इज सच ए यूनिक क्रिएचर ऑफ द गॉड। अगर प्रॉब्लम है तो आंसर भी है। यू कैन से इन दिस वे, इन अर्ली सोसाइटी कास्ट सिस्टम और सिस्टम वॉज मिसिंग बिकॉज एज सच देयर इज नो सरप्लस। सोसाइटी वॉज इगलिटेरियन, मीन्स ऑल वर ऑलमोस्ट इक्वल। Only cattle was some source of status, otherwise all are equal. One system as such has not evolved. People can change their occupations, but it means society was egalitarian. Caste system has not evolved. Now see what is polity. To see how we are demarcating history simply by taking an example of iron. See how was the polity. Can you tell me? In early Aryan society, that is Vedic society, whether the modern state has evolved? Modern state, आधुनिक राज्यों का जन्म हो गया था? नहीं हुआ, नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है राज्य का निर्माण भूमि पर होता है, हवा में नहीं होता है। राज्य का निर्माण जानवर पर नहीं होता है, भूमि पर होता है। लैंड टेक्स बर्थ ऑन ए स्टेट टेक्स बर्थ ऑन अ लैंड। और लैंड की इंपॉर्टेंस तभी आएगी जब सोसाइटी स्टेबलाइज हो जाएगी, जब आयरन आ जाएगा। आयरन आएगा तो एग्रीकल्चर सरप्लस हो जाएगा। देन किंग विल ट्राई टू डिक्लेयर हिज कंट्रोल ओवर अ लैंड। बट इन अर्ली सोसाइटी वॉज नोमैडिक। आपको मालूम नोमैडिक किसे कहते हैं? पेस्टोरल सोसाइटी। वॉर इज गोइंग फॉर द कैटल्स, सम टाइम हियर सम टाइम देयर। इन अर्ली सोसाइटी पॉलिटी वॉज वेरी सिंपल, यू कैन से। मॉडर्न स्टेट हैज नॉट इवॉल्व, दैट इज जनपद हैज नॉट इवॉल्व। इट इज वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी, इट इज वेरी अमेजिंग ऑल्सो। ये विरोधाभास है। राजा तो है लेकिन राज नहीं है। तो आप कहते हैं राजा किस बात का भाई? तो वी कैन से लाइक दिस, इन अर्ली सोसाइटी किंग वॉज देयर बट स्टेट वॉज मिसिंग। तब राजा किस काहे के राजा है बताइए आप? किंग का है। किंग वॉज देन किंग वॉज गवर्निंग व्हाट? किंग वॉज गवर्निंग हिज ट्राइब। राजा तो है परंतु राज नहीं है। तो राजा किस बात का भाई? आपने कहा राजा वो कबीले का राजा है। तो किंग वॉज द हेड ऑफ हिज ट्राइब, ही वॉज लीडिंग द हिज ट्राइब इन द वॉर और सम इन एक्सपीडिशन ऑफ टू कैच द कैटल्स। बट एज सच modern kingship has not evolved. Neither modern state has evolved. हाँ, king was there, but he was the leader of his tribe. और आपको मालूम है जब राज नहीं है तो साम्राज्यवाद भी नहीं होगा। राज के विस्तार को हम क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म बोलते हैं। तो किंगशिप, मॉडर्न किंगशिप हैज नॉट इवॉल्व, ऑल्दो किंग वाज देयर बट मॉडर्न स्टेट वाज मिसिंग।
और साफ साफ लिखा है, किंग वॉज गवर्निंग हिज ट्राइब एंड ट्राइब वॉज कॉल्ड एज जना। इम्पीरियलिज्म वॉज मिसिंग, साम्राज्यवाद कहां से आ जाएगा। एटोक्रेसी वॉज आल्सो मिसिंग, आखिर जब ही आएगी जब जेब में पैसा होगा। जब कृषि अर्थव्यवस्था ही नहीं है तो राजा बड़ा सिंपल है, सभा समिति संस्थाएं होती हैं। तो आप ध्यान दीजिए, हम सिर्फ आयरन के बेस पर सोसाइटी के बारे में डिमार्केट अपने आप कर रहे हैं। तो हमने देखा कि भाई सोसाइटी कैसी होगी, पॉलिटी कैसी होगी, इकोनॉमी कैसी होगी। अब देखिए हम कल्चर पे आ रहे हैं। बिफोर क्या कल्चर मतलब धर्म की बात की जा रही है, संस्कृति की बात की जा रही है। अगर आप प्री आर्यन सोसाइटी में देखेंगे, आप ऋग्वेद में देखेंगे, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ऋग्वेद में कहीं भी आत्मा, दैट इज सोल एंड साल्वेशन। साल्वेशन क्या होता है भाई? मुक्ति होता है, निर्वाण होता है। इसको और समझाइए, मुक्ति किसे कहते? मुक्ति कहे कि मुक्ति चाहिए? आज कोई चाहता है, आज की तारीख में कहा जाए 2021 में कोई मुक्ति चाहता है? अभी नहीं चाहेंगे, जब 60 के ऊपर होंगे तब चाहेंगे मुक्ति। अभी आपको पाना है कुछ, है ना। मुक्ति जब पाते हैं जब समाज में तनाव आएगा, जब आपको लगेगा लाइफ कुछ नहीं है, अभी आप मुक्ति की बात नहीं करेंगे। तो मुक्ति कब आती है? जब हमारे पास, है ना, आर्थिक समृद्धि होती है। बाद में हम उसका पछतावा देखते हैं कि लाइफ में हम कहाँ थे, कहाँ आए थे। तो समाज में जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो मुक्ति की बात ही नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। इन अर्ली सोसाइटी, दैट इज ऋग्वेदा, वी डोंट फाइंड एनी टर्म लाइक सोल एंड सैल्वेशन। जब पैसा आएगा तब तनाव भी आएगा, और जब तनाव आएगा तब आदमी कहेगा आत्मा किसे कहते हैं, परमात्मा ना, और कहाँ आए हैं, कहाँ जाना है। दिस ऑल विल टेक बर्थ आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आयरन। दर्शन भी कब आएगा? जब तनाव आएगा। अर्ली आर्यन रिलीजन बड़ा सिंपल है। दे आर वर्शिपिंग द नेचर गॉड्स। किसकी पूजा कर रहे हैं? बिकॉज नेचर गॉड्स आर लिंक्ड विद देयर इकोनॉमी। पशुपालन में क्या होता है? प्राकृतिक शक्तियों का भय होता है। अर्ली आर्यन पीपल वर वर्शिपिंग द नेचर गॉड्स बिकॉज नेचर गॉड्स वर लिंक्ड विद द इकोनॉमी। पशुपालन में क्या होता है? आप देखें, आप सुबह निकल जाते हैं, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन सर्च ऑफ ग्रीन पास्चर्स एंड द इवनिंग यू कम बैक। यू आर स्केयर्ड विद द नेचर। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जिससे हम डरते हैं, हम उसी की पूजा करते हैं। डरने का मतलब जिसकी हमें उपयोगिता होती है, उसी देखिए उसी को हम प्रायोरिटी बना लेते हैं। जैसे आप विद्यार्थी हैं, आपको अभी यूपीएससी निकालना है, अभी आप सरस्वती को नंबर 1 पर रखते होंगे, और जिस दिन यूपीएससी निकल जाएगा सरस्वती की फोटो पीछे हो जाएगी, लक्ष्मी सबसे आगे आ जाएगी, है ना। या अभी हनुमान जी भी सामने होंगे आपके, चूँकि आपको डिसिप्लिन से रहना है। तो ह्यूमन नेचर होता है। और फिर 60 के बाद आप विष्णु के पास चले जाएंगे, भैया आपको सब कुछ देख लिया संसार में क्या होता है, मुक्ति चाहिए। तो ये ह्यूमन नेचर होता है, ये इंस्टिंक्ट होता है। बड़े बड़े बैंडेट्स जो होते हैं, डाकू वगैरह देखें आप, वो काली की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, कि उनका रूप थोड़ा सा डरावना होता है। हमको लगता है समाज को डराना है, लगता है ये गॉड का टाइपोलॉजी हमसे मिल रहा है। तो ह्यूमन नेचर होता है, जैसा हमारा पेशा होता है, जैसा हमारी मनोवृत्ति होती है, कहीं ना कहीं से ईश्वर की रचना भी उसको प्रभावित करती है। सॉरी। ऐसे यहाँ देखेंगे आप, अर्ली आर्यन रिलीजन जो है नेचर वर्शिप पर डिपेंड करता है। गॉड्स कौन से टॉप पे है जो हमको ज़रूरत है उस समय। आप देखें उसमें सबसे ज़्यादा मंत्र किसको दिए गए हैं बताइए? इंद्र को कहा गया। फिर नंबर 2 पे कौन है भाई? इंद्र का मतलब क्या होता है? थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग इन द स्काई। हाँ, इंद्र का तात्पर्य क्या? प्राकृतिक शक्तियों को देवी रूप दिया गया है। नेचर फोर्सेस वर गिवन द नेम्स ऑफ द गॉड्स। प्राकृतिक शक्तियों को हमने देवता या देवियाँ बना दिया है। जब वो सुबह सुबह निकलते होंगे कहीं, जब बरसात या आवाज़ आसमान में जब बिजली और कड़कती होगी, अभी भी आप देखें छोटा सा अगर आप पटाखा बजाते हैं, जानवर कितना डर जाते हैं। अभी भी हम लोग, है ना, तो जानवर तभी डर जाते हैं। और उनका पेशा है पशुपालन। तो ह्यूमन नेचर क्या है? जिससे आप डरेंगे उसी की पूजा करेंगे। इंद्र वॉज टॉप इन द प्रायोरिटी। ऑलमोस्ट अराउंड 251 मंत्रास आर एड्रेस टू दिस गॉड। सेकेंड है वरुण, रेन गॉड, सेम लॉजिक। आपका पेशा पशुपालन है। आप देखें अभी भी हल्का बरसात हो जाए जानवर कहाँ जाते हैं, बहुत दे गॉट स्केयर्ड बाय दिस। और सारी इकोनॉमी उनकी एनिमल पे ही है, कैटल पे ही है। इंद्र हो गया, वरुण, फिर अग्नि देखा आपने, अग्नि का भी कॉन्सेप्ट से, फायर से जानवर बहुत डरता है। तो कुल मिला के देखें ये ह्यूमन। तो हमारा कहने तात्पर्य यह है, आप पढ़ते समय रटिए मत, आप थोड़ा सा उसका लॉजिक लगाइए ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप देखें यहाँ पर, और एक चीज़ और भी है, जब इकोनॉमी सिंपल होती है हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है। व्हेन योर इकोनॉमी इज वेरी सिंपल यू हैव सरप्लस टाइम। उल्टा है, ये जस्ट वाइस वर्सा है। और इकोनॉमी जब हमारी कॉम्प्लेक्स होती है तो टाइम क्राइसिस होती है। जैसे आज है, आज हमारे पास टाइम नहीं है, तभी हम ऑनलाइन बैंकिंग पे आ गए हैं। गुड मॉर्निंग से हम जीएम पे आ गए, जीएन पे आ गए, क्योंकि टाइम ही नहीं है भाई। और हो सकता है कि आने वाले 10 साल में हम जी भी ना लगाएं, कहते नहीं लगा, जी अपने आप लगा लीजिए, टाइम ही नहीं है भाई। और पेटीएम एटीएम क्यों आया, आप समझ रहे क्यों आया? क्योंकि टाइम ही नहीं है। तो कुल मिला के इकोनॉमी जैसी होती है, आदमी की मनोवृत्ति वैसी हो जाती है। वही लॉजिक है यहाँ पर। यहाँ पर टाइम ही टाइम आपके पास है। किसमें? इससे पहले।
तो कल्चर कैसा, कल्चर बड़ा है ना, उसमें क्या है, मल्टीपल बहुत सारे गॉड्स हैं और रिचुअल्स हैं, सेक्रीफाइसेस भी हैं, क्योंकि टाइम है, टाइम कहाँ लगाएंगे, इसमें लगाएंगे आप। अब देखिए आप इसके बाद आ रहे हैं, आफ्टर आ रहे हैं, उसको बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक के बाद जो भी वैदिक टेक्स्ट है उसको बोला जाता है लेटर वैदिक पीरियड। ऑल ऑफ सडन यू फाइंड सम चेंजेस आर गोइंग ऑन। हम उसको रट लेते हैं कि भाई हो गया होगा, ऐसे हो गया होगा। अब इसमें आप कोई भी ले लीजिए, पहले सोसाइटी ले लीजिए, आयरन गॉट डिस्कवर्ड, और नेक्स्ट पार्ट जो है याद रखिए, ये फर्स्ट फेज को बोलते हैं हम अर्ली वैदिक पीरियड और इसको बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। तो एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते हैं, अगर हमको नहीं भी याद है फिर भी हम लॉजिक लगाएंगे करना क्या, अच्छा ये आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए आफ्टर सोसाइटी के बारे में कहा जा रहा है, सोसाइटी सोशल स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा। सबसे पहले आप कहेंगे वर्ण सिस्टम आ जाएगा। जब अधिक समाज में जब कोई चीज़ अधिशेष आती है, संघर्ष होता है, और संघर्ष होता है सॉल्यूशन भी होता है। सोसाइटी गॉट डिवाइडेड इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स। अर्लियर यू वर हैविंग नो सरप्लस, ऑल आर ब्रदर एंड सिस्टर, बट नाउ यू हैव सरप्लस। ये ह्यूमन नेचर भी है, जब होगा तो व्यवस्था अपने आप आ जाएगी। इन शॉर्ट यू कैन से नाउ सोसाइटी गॉट स्ट्रेटिफाइड, हैव्स एंड हैव नॉट्स, वीआईपीज एंड नॉन वीआईपीज। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं वर्ना सिस्टम वॉज ए सिस्टम विच गॉट इवॉल्व टू एप्रोप्रिएट द सरप्लस, वी कैन से लाइक दिस, एप्रोप्रिएट, हड़पना। पहले नहीं था, क्यों नहीं था, कुछ है ही नहीं लड़ने के लिए ना बांटने के लिए। भाई अब क्यों भाई, घी और दूध के लिए क्या लड़ेंगे आप, है ना, अपना करेंगे अपना जो है। तो सोसाइटी इज इवॉल्विंग ए सिस्टम, बिकॉज सोसाइटी को एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, अदरवाइज सोसाइटी में क्या होगा, सोसाइटी वॉज बिटवीन टर्मोइल, टर्मोइल मतलब संघर्ष हो रहा है भाई, सरप्लस आ चुका है। तो वर्ण सिस्टम इज कमिंग, तो वर्ण सिस्टम इज एन ऑफशूट ऑफ आयरन बेस्ड टेक्नोलॉजी। सोसाइटी गॉट स्ट्रेटिफाइड। नाउ सी द पॉलिटी, पॉलिटी में क्या चेंज आएगा, बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा, बर्थ ऑफ मॉडर्न स्टेट्स। अब नाम क्या हो गया इसका भाई, पहले जन था, जन के आगे 3 लेटर जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, जनपद हो गया। और पद का मतलब आपको मालूम है क्या, पैर होता है, जहां पर हमारा जन रहता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। द टर्म जना, पॉलिटी में क्या चेंज आ रहा है, पोस्ट आयरन, द बर्थ ऑफ मॉडर्न स्टेट्स, एंड द वर्ड जना गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू जनपद, जहां पर हमारा जन ट्राइब रहती है। नाउ दे आर क्लेमिंग दैट दिस लैंड बिलोंग टू देम, दैट इज द किंग। तो पॉलिटी में यू फाइंड fundamental changes are coming, the birth of modern political states, and now imperialism is also coming. जब राज आएगा तो साम्राज्यवाद अपने आप आ जाएगा, राज का विस्तार करिए, और एटोक्रेसी भी आ जाएगी। आपने पढ़ा होगा एटोक्रेसी, जब अधिशेष होता है तो एटोक्रेसी भी आ जाती है। सभा समिति का नाम सुना आप लोगों ने, सभा समिति की वैल्यू कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। लॉजिक से भाई आपको मालूम है, आप साम्राज्यवाद आ चुका है। अब राजा अपने आप को बताना चाहता है कि वो जो है ना सुपर हीरो बन चुका है, इसके पहले सुपर हीरो नहीं था, वो सुपर हीरो बन चुका है। वो कहता कुछ नहीं, सभा समिति, अब एटोक्रेसी आ चुकी है। इट मीन्स आई गेटिंग पॉइंट। अब यहाँ पर लड़ाई किसके लिए होगी, जानवर के लिए नहीं होगी। वॉर इज गोइंग फॉर द एक्सपेंशन ऑफ लैंड। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से नोटिस कीजिएगा, आयरन, बताइए वर्तमान में लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, थोड़ा सा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बता दिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इंडिया में कहाँ पाया जाएगा, ईस्ट ही बोला जाएगा भाई, बिहार झारखंड का जो बॉर्डर है। तो अंडरस्टूड है, इंडियन हिस्ट्री में पॉलिटिकल फॉर्मेशन, बर्थ ऑफ मॉडर्न स्टेट्स में वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद। सुना होगा आपने, 16 महाजनपदों का उदय। तो 6th सेंचुरी BC तक आते आते हमारे भारत के इतिहास में लगभग 16 बड़े बड़े महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। लेकिन नाम ही उसका महाजनपद, पहले जनपद वो महाजनपद हो गया। और आपको सरप्राइज होगा, आउट ऑफ 16 ऑलमोस्ट अराउंड डजन, 10-11 के आसपास, अराउंड a dozen आर टेकिंग बर्थ इन द ईस्टर्न इंडिया। ईस्ट में लोहा भी है, लकड़ी भी है, तो अपने आप आपको मालूम इकोनॉमी क्या हो जाएगी। तो 16 महाजनपदों में से क्या कारण है कि लगभग 1 दर्जन का जन्म पूर्व में हो रहा है। अंडरस्टूड है, आयरन का सारा गेम आयरन का है, और लोहा वहीं पाया जाता है। तो पॉलिटिक्स बिटवीन सच ए स्वीपिंग चेंजेस, इम्पीरियलिज्म इज कमिंग। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए, इम्पीरियलिज्म का उदय ऋग्वैदिक काल में है, लेटर वैदिक काल में, आप लॉजिक से कर लेंगे। आपको कुछ याद ही नहीं करना भाई, आपने हिस्ट्री कैसे पढ़ा है, आपने फोर्स ऑफ चेंज को जोड़ा है। अब देखिए कल्चर पे आ जाइए, क्योंकि हमने इकोनॉमी पे आ जाइए, थोड़ा इकोनॉमी भी डिस्कस करते हैं। इकोनॉमी में क्या होगा, सोसाइटी लिखा, पॉलिटी लिखा, इकोनॉमी भी देखा। अब आपको मालूम है, जब सरप्लस इकोनॉमी होती है तभी नगरों का जन्म होता है। ये बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। नगर का जन्म हो ही नहीं सकता अगर सोसाइटी में इकोनॉमिक सरप्लस नहीं होगा।
तो फर्स्ट कंडीशन फॉर अर्बनाइजेशन इज योर इकोनॉमी शुड हैव सरप्लस इकोनॉमी। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अच्छा एक कन्फ्यूजन यहाँ ये भी होता है, सर फिर इंडस वैली में कैसे हो गया सरप्लस? भाई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, सर आप कह रहे हैं वैदिक काल में हो गया सरप्लस। इंडस वैली वाला तो नदी का जादू था, वहाँ भी लोहा तो नहीं है, तभी उसका नाम क्या रखा गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहाँ नगर का जन्म तो हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है भाई? सभ्यता का जन्म नदी किनारे हुआ, लोहे की जरूरत ही नहीं, जरूरत तो नहीं पड़ेगी, कॉपर से ही काम हो जाएगा। लेकिन जब लोहा आएगा तो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा पूरे इंडिया में, है ना। लोहा मतलब आप एक्सपोर्ट करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑल्दो आयरन इज मिसिंग, बट सिंस सोसाइटी हैड ट्रिगर्ड अराउंड द इंडस रिवर एंड द सब्सिडरीज, हैंस देयर वाज सरप्लस। लेकिन ये स्टेबल सरप्लस, स्टेबल मतलब वो टेम्पररी है, ये स्टेबल है, तभी उसका डिके हो गया। ध्यान दीजिए, नदी सूख गई है, नदी का रास्ता बदल गया, सभ्यता गायब हो गई। ये स्टेबल अर्बनाइजेशन होगा। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, सेकंड अर्बनाइजेशन। भारत के इतिहास में सेकंड अर्बनाइजेशन कब स्टार्ट होता है, लेटर वैदिक पीरियड से मान लेते हैं, और 6th सेंचुरी बीसी तक आते आते वो क्लाइमेक्स पे होता है। तो आपने क्या देखा, इकोनॉमी बिकेम कॉम्प्लेक्स, इंडिया विटनेस्ड अर्बनाइजेशन, स्टेबल अर्बनाइजेशन। इंडस वैली कैसा है, उसको बोलेंगे टेम्पररी बोल सकते हैं आप, वो नदी का जादू है, ये स्टेबल जादू है। इंडिया विटनेस ए परमानेंट अर्बनाइजेशन, यू कैन यूज दिस वर्ड, परमानेंट अर्बनाइजेशन, वो टेम्पररी अर्बनाइजेशन है। और आपको मालूम है जब अर्बनाइजेशन होगा तो क्या होगा, नए नए मार्केट फोर्सेस का जन्म होगा, नए नए ऑक्यूपेशन का जन्म होगा, और इकोनॉमी सिंपल हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई। और जब नगर बसेंगे, नए नए व्यवसाय आएंगे, अब आपके पास टाइम ज़्यादा है या टाइम की कमी है, कमी हो जाएगी। और आपको मालूम है टाइम कमी होगी तो ह्यूमन सोसाइटी अपने आप इवॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने पेटीएम क्यों निकाला, टाइम ही नहीं है, सेम चीज़ यहाँ होगी, यहाँ भी पेटीएम आ जाएगा। पेटीएम मतलब पेटीएम में से कोई व्यवस्था आ जाएगी या मनी आ जाएगा, बर्थ ऑफ करेंसी। तो बर्थ ऑफ करेंसी इज प्री आयरन और पोस्ट आयरन, क्योंकि इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्स हो गई, आपके पास टाइम ही नहीं है। वस्तु विनिमय तो भाई घंटे भर बैठेंगे आप, मनोरंजन करेंगे, तब वस्तु विनिमय होगा, बाद में होगा, क्योंकि टाइम ही टाइम आपके पास है। यहाँ टाइम ही नहीं है आपके पास, आपको चाहिए फास्ट मोड ऑफ एक्सचेंज। इंडिया विटनेस बर्थ ऑफ करेंसी, और जब करेंसी आएगी तो आपको मालूम है मनी लैंडिंग भी आ जाएगी। और जब मनी लैंडिंग आएगी आपको मालूम है हर आदमी अमीर बन जाएगी। जैसे आज भी हर आदमी अमीर बन सकता है, बैंक से लोन ले लीजिए, आप बन जाएंगे। आपके पास टैलेंट होना चाहिए, यू शुड हैव एंटरप्राइजिंग एबिलिटी। अब चाहे विजय माल्या बन जाइए, टाटा बन जाइए, आपके ऊपर है, क्यों भाई, तो आपके ऊपर है। तो इकोनॉमी लिबरलाइज हो गई, फर्स्ट टाइम इंडिया इज विटनेसिंग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। ये बड़ा एसेंशियल टर्म है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पहली बार आर्थिक उदारीकरण कब हुआ है, तो आप इसको बोल सकते हैं लेटर वैदिक पीरियड ऑनवर्ड्स। उदारीकरण मतलब हर आदमी अमीर बन सकता है। नगर आ चुके हैं, आप जाइए काम कीजिए, लोन लीजिए मनी साहूकार से, चुका दीजिए, बन जाइए, टाटा बन जाइए आप, या विजय माल्या बन जाइए, वो आपके ऊपर है। तो इकोनॉमिक गॉट लिबरलाइज। नगर बसेंगे, एक चीज़ और भी है, जब नगर बसेंगे तो हमारी सोच बदलेगी। इंडिविजुअलिज्म, नए नए वैल्यूज सोसाइटी में आएंगे। इंडिविजुअलिज्म व्यक्तिवाद, पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, धीरे धीरे अब न्यूक्लियर फैमिली बनना स्टार्ट होगा। न्यूक्लियर फैमिली से क्या होता है, व्यक्तिवाद आता है, उदारवाद आता है। और आपको मालूम होगा अगर व्यक्तिवाद नहीं आता तो हम यहाँ पर नहीं होते, समाज बंधा रहता, नई नई सोच नहीं आ पाती। इन शॉर्ट वी कैन से दिस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हैड आल्सो गिवन बर्थ टू न्यू वैल्यूज, इंडिविजुअलिज्म, लिबरलिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। और शायद यही कारण है समाज के अंदर एक, देखिए कोई चीज़ समाज में आकस्मिक आती है, तनाव भी आता है, पैसा आएगा तनाव भी आएगा। जैसे आज भी हम देखिए सब कुछ हमारे पास भी तनाव है, तो इंडियन हिस्ट्री में पहली बार तनाव भी आएगा। कौन सा, पैसे वाला तनाव आएगा। जब ये जब पशुपालन था कोई तनाव नहीं था, आपको याद होगा। आप देखिएगा ऋग्वेद में क्या लिखा है, ऋग्वेद में जो मंत्र लिखे गए हैं, मंत्र अभी भी हम लोग पूजा क्यों करते हैं, आप लोग पूजा करते हैं, बताइए आप लोग वर्शिप क्यों करते हैं? भाई आप लोग पूजा करते होंगे, नहीं भी करते होंगे तो भी कुछ ना कुछ मानते तो होंगे, तो हम पूजा क्यों करते हैं? वर्शिप नेचर, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों करते हैं आप? सिलेक्शन के लिए करते हैं, यूपीएससी कुछ ना कुछ तो होगा, भाई सिलेक्शन के लिए करते हैं यार, और क्या होगा? इस समय तो स्टूडेंट का यही मोटिव होता है, सिलेक्शन हो जाए अपना, और तो कहीं ना कहीं कुछ मोटिव होता है, हम है ना, वाई वी वर्शिप, सम मेटलिस्टिक मोटिव इज देयर। मंदिर में हम भोग क्यों लगाते हैं? कहीं ना कहीं इसलिए लगाते हैं, बजरंगबली इस बार जो है ना सिलेक्शन के बाद 5,000 का प्रसाद देंगे, जो भी है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर को भी हम चाहते हैं, थोड़ा सा लालच देना चाहते हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन होगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं मोटिव होता है, मेटलिस्टिक मोटिव होता है उसके पीछे। यहाँ भी देखिए, सुनिएगा यहाँ पर, अब समाज के अंदर पैसा आ गया, नगर आ गया, भटकाव भी आ गया, नगर आ गया, भटकाव भी आ गया। इंडिविजुअलिज्म मतलब ही है भटकाव। यू विल ट्राई टू चैलेंज व्हाट,
ट्रेडिशनल नॉर्म्स, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। जब नगर में आते हैं, हमारे व्यक्तिवाद आता है, तो हम पारंपरिक मूल्यों को चुनौती देते हैं और समाज एक टर्मोइल मतलब एक वह ना भटकाव से गुजर रहा है। और आपको मालूम है, चूँकि गॉड ने एक ऐसा मनुष्य, ऐसा जीव बनाया है जिसके पास आंसर भी आ जाता है, तनाव है, आंसर भी है। तो वही चीज़ यहाँ पर होगी। सोसाइटी में तनाव हो रहा है, अब एक नया कल्चर आएगा और शायद यही कारण है 6th सेंचुरी BC में हम देखते हैं भारत में एक बहुत बड़ा एक बौद्धिक आंदोलन, जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल मूवमेंट कह सकते हैं, जिसका नायक बुद्धा है, महावीर है। उस समय लगभग 24 ग्रेट थिंकर्स हैं। तो ऐसा क्या जादू हुआ कि 6th सेंचुरी BC में हमको बड़े बड़े पूरी एक सीरीज मिल जाती है, बड़े बड़े थिंकर्स मिल जाते हैं। बुद्ध भी आते हैं, महावीर भी आते हैं, गोशाल भी आते हैं, अजित के सम्मेलन भी आते हैं। तो 6th सेंचुरी BC में इंडिया इज विटनेसिंग इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन, सब इंटरकनेक्टेड, वो कल्चर का पार्ट हो गया। हम कल्चर पे आ गए। तो कल्चर यदि धर्म संस्कृति में हम पाते हैं कि भारत के इतिहास में एक धार्मिक आंदोलन तो नहीं, एक बुद्धिजीवी आंदोलन बोल सकते हैं, बुद्धिजीवी आंदोलन, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट गॉट स्टार्टेड। आपको मालूम है समाज में क्यों चीज़ क्यों आती है? आंसर क्या होता है? समाज के तनाव को कम करना। पैसा रुपया सब आ चुका है, नगर आ चुके हैं, भटकाव आ चुका है, सोसाइटी में टर्मोइल हो रहा है, और आपको मालूम है मनुष्य है तो तनाव है, तो आंसर भी आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं से ये इंटेलेक्चुअल मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ है? इस मेटलिज्म का जो टेंशन का आंसर बताने के लिए। बुद्ध ने क्या बताया आपको बताइए? बुद्ध का सिद्धांत क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ। महावीर ने भी दिया है, पंचव्रत कहा था बाद में। तो कहीं ना कहीं से ये सिद्धांत क्यों आ रहे हैं? सिद्धांत इसलिए आ रहे हैं कि सोसाइटी में तनाव हो रहा है। भाई पहली बार आदमी की जेब में पैसा आया है, तो पैसा आया तो कोई बर्बाद भी हो रहा है, कोई अरबपति बन रहा है, कोई आपको बन रहा है, तो समाज में तनाव हो रहा है, फैमिली ट्रेडिशंस ब्रेकअप हो रहे हैं। तो कैसे हम बैलेंस बना पाएंगे? आंसर कौन बताएगा? बुद्ध बताएंगे, महावीर बताएंगे। और देखिए ये सहयोग नहीं है, इसके पीछे रीजन, इट इज नॉट ए, वी हैव रीजन्स फॉर इट। इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन का जन्म कहाँ से होता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसका भी आंसर ईस्ट है। बुद्ध भी देखिए ईस्ट से आते हैं, पूरब से आते हैं, महावीर पूरब से आते हैं, गोशाली पूरब से आते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि इस बुद्धिजीवी आंदोलन का जन्म पूर्वी भारत से होता है? अंडरस्टूड है। सबसे पहले मैट्रिस्टिक इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है? इकोनॉमी ईस्ट से हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ईस्ट से हो रहा है। तो इस बुद्धिजीवी आंदोलन की नींव पूर्वी भारत से रखी जाती है, और आपको आश्चर्य होगा इस नींव को रखने वाले, द फाउंडेशन हैज बीन लेड बाय द थिंकर्स कमिंग फ्रॉम द ईस्टर्न इंडिया, एंड द लीडर्स ऑफ दिस रेवोल्यूशन बिलोंग टू क्षत्रिय कम्युनिटी। बुद्ध भी क्षत्रिय हैं, महावीर क्षत्रिय है, गोशाल भी क्षत्रिय है। तो ऐसा क्या कारण है कि इस बुद्धिजीवी आंदोलन की जो कमान है वो एक क्षत्रिय बुद्धिजीवियों के पास है? क्योंकि आपको मालूम है समाज में अगर विचार देना है कितना आसान नहीं है। कम से कम एक आपकी और एक चीज़ और भी सहयोग है, यहाँ पर सहयोग है, जो एक बुद्धिजीवी आंदोलन के जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम रॉयल फैमिलीज, मेजॉरिटी आर कमिंग फ्रॉम रॉयल फैमिलीज, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू स्पीक एनीथिंग। उस समय कुछ बोलना तो आसान नहीं है। तो ये सहयोग नहीं, इसके पीछे रीजंस हैं। उस सिस्टम को चैलेंज करना इतना आसान नहीं था, और कुछ इतिहासकारों ने, सम हिस्टोरियंस हैड गिवन ए नेम टू दिस रेवोल्यूशन। अभी हालांकि टेक्स्ट बुक में नहीं आया, कुछ रिसर्चेज में कहा गया है, we can call this revolution, intellectual revolution of 6th century BC as the, thank you भाई, which can call it as the first Renaissance। एक वर्ड है Renaissance, are you aware of the term? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पुनर्जागरण। तो देखिए कल्चर पे हम आ गए। हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोहे ने भारत के अंदर एक पुनर्जागरण को जन्म दिया है। तो कभी यूपीएससी इस वर्ड को जोड़ सकती है, हालांकि ये वर्ड ऑप्शन में आ सकता है, हिस्ट्री ऑप्शन में आ चुका है। कुछ वर्ड जो कुछ अच्छे होते हैं ऑप्शन के, कभी कभी जीएस में आ जाते हैं। So how we can say the 6th century BC in the history of India can be called as the first Renaissance in the history of India? तो we can justify the point because बताइए Renaissance का मीनिंग क्या होता है? ये तो आपने बताया, मीनिंग का मतलब हिंदी में बता दिया, पुनर्जागरण। जैसे आपने बताया हिस्ट्री क्या होता है, आपने कहा इतिहास कहते हैं, आपने हिस्ट्री क्या होता है, इतिहास को कहते हैं। तो यहाँ पर उसके आगे का बताइए, इतिहास के आगे का पुनर्जागरण किसे कहते हैं? व्हाट यू मीन बाय Renaissance? वेरी गुड। और थोड़ा सा और क्लियर, सही है आपका, लगभग थोड़ा सा और एक दो वर्ड मिसिंग है इसमें। और बताइए, पीछे से बताइए आप लोग। बी वेरी वोकल। यूपीएससी के लिए याद रखिए, जितना आप वोकल होंगे आपने आज जवाब देने में, उतना चूँकि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बता दें, बहुत पढ़ना तो नहीं है, लेकिन हाँ जिस दिशा में जाना है उसमें आपको एक्सप्रेसिव बहुत होना चाहिए। एक्सप्रेसिव बहुत, फास्ट आंसर लिखना है। 6 घंटे आप कैसे लिख पाएंगे? इतना
ट्रेमेंडस प्रेशर रहता है। तो थॉट्स जल्दी से कुछ ही बोलिए, गलत सर दो बोलिए, बताइए रिनेसा का मतलब सुना तो होगा आपने, पुनर्जागरण काल, इन्वेंशन डिस्कवरीज। बताइए अगर ये हम रिनेसा भारत के इतिहास में से पहले कब सुना था आपने, कभी किस पीरियड में आता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन। नहीं, यूरोप के लिए भारत की बात की जा रही है, सही कहा आपने, भारत के बारे में। आपने राम मोहन दयानंद का नाम सुना होगा, है ना? हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, अभी अब तक क्या था सुनिएगा, अभी तक हमारी किताबों में, हिस्ट्री किताबों में क्या लिखा है, भारत के इतिहास में पुनर्जागरण कब आता है? 19वीं सदी में आता है। 19th century in the history of India is called as the century of Renaissance. 19th century means something. What do you mean by 19th century? कब से माना जाएगा? 1800 से 1899. तो when we go for traditional history, we say India has witnessed Renaissance in the 19th century. And who were the godfathers? राम मोहन रॉय, विवेकानंद, दयानंद, उन्होंने समाज को जगाया है। चूँकि इसको हम क्या कहते हैं, भारत के इतिहास में पुनर्जागरण बोलते हैं। ठीक है, यूपीएससी आपसे क्या अपेक्षा करती है? किताबी ज्ञान से बाहर निकलिए, और क्या हमें, क्योंकि वो ब्रिटिश काल है भाई, वो 19th सेंचुरी ब्रिटिश काल ही तो हुआ। हम सारी चीज़ का श्रेय ब्रिटिश काल को देना क्यों चाहते हैं भाई? क्या हमारे इतिहास में कहीं रिनेसा नहीं हुआ? तो ये क्वेश्चन हिस्ट्री ऑप्शन में आ चुका है। क्या 6th सेंचुरी बीसी को हम रिनेसा कह सकते हैं? और आप करिए, रिनेसा मतलब क्या होता है ना, नए विचारों का, हालांकि शाब्दिक अर्थ होता है जन्म, पुनर्जन्म होता है। डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है रिनेसा का? पुनर्जन्म। लेकिन हमें डिक्शनरी मीनिंग तो देखना नहीं है, हमको अप्लाइड मीनिंग देखना है। तो रिनेसा मतलब होता है बर्थ ऑफ आइडियाज एंड वैल्यूज ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रेशनलिज्म, तर्कवाद, नए सिद्धांत, आइडियाज का जन्म ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक एंड रीजंस, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द पास्ट, तभी तो मतलब पुनर्जागरण। बर्थ ऑफ न्यू आइडियाज वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड रीजन, इंस्पिरेशन फ्रॉम द पास्ट। तो हम इसको क्यों कह सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं से हमारे यहाँ वैदिक काल बीत चुका है, धर्म दर्शन आ चुका है, तो कहीं ना कहीं हमने उसको थोड़ा सा इंस्पायर्ड होकर हमने चेंज किया है। और बुद्ध और महावीर ने तर्क की बात करी है, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया। मनी की आप देखें, सबने बताया है कि पैसा उतना ही बटोरिए जितना जरूरत हो, हमको लॉजिक बताया जा रहा है, और हम पैसे के साथ संतुलन बनाने के प्रयास कर रहे हैं। आज भी देखिए वही तनाव, वही चीज़ है। तो रिनेसा का मतलब क्या होता है? समाज को जगाना, समाज के तनाव को कम करना। कैसे? लॉजिक और रीजन से। तो रिनेसा इज अ थॉट विच इज बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजंस टू प्रोवाइड ऑर्डर इन सोसाइटी, सोसाइटी में बैलेंस बनाने के लिए। तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि 6th सेंचुरी बीसी भारत के इतिहास में वी कैन कॉल 6th सेंचुरी बीसी एज द फर्स्ट रिनेसा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आप और डीपली सोचेंगे इसको, तो हम देखिए कैसे कह सकते हैं 6th सेंचुरी बीसी। अभी आपने देखा, इसको हम बोल सकते हैं भारत के इतिहास में पहला रिनेसा बोल सकते हैं, बिकॉज बुद्धा एंड महावीरा आर ट्राइंग टू गिव एन आंसर हाउ यू कैन लिव ए बैलेंस लाइफ विद द मनी इकोनॉमी। पहली बार मनी आया है भारत में, कैसे आप मनी और शहर आया है, भटकाव भी आया है, इन्होंने आंसर बताया है लॉजिक और रीजन से। फर्स्ट रिनेसा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सेकेंड रिनेसा बोलेंगे हम 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी किसे बोलेंगे आप? कब से स्टार्ट होगा भाई? आपको इस समय भारत के इतिहास में क्या परिवर्तन आ रहा है बताइए? 13th सेंचुरी में भारत का इतिहास कैसे बदल रहा है? आपको मालूम है कि मोहम्मद घोरी का इन्वेजन हो चुका है 1192-94 में, 1192-94 में हो चुका है, और भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अल्पसंख्यक इस्लामिक राज की स्थापना हुई, माइनॉरिटी इस्लामिक स्टेट। ए माइनॉरिटी इस्लामिक स्टेट इज गोइंग टू गवर्न हिंदू मेजोरिटी। ये इम्पॉसिबल है, असंभव है, जब तक समाज में को जगाया ना जाए, बैलेंस ना बनाया जाए। तो यहाँ पर हम कौन सा मूवमेंट देखते हैं? आपने सुना होगा, किताब में लिखा होगा, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। तो उसको भी हम कैसे कह सकते हैं? वो भारत के इतिहास का सेकेंड रिनेसा हो जाता है। और रिनेसा कब आता है? जब समाज में तनाव होता है। रिनेसा कब आता है? जब समाज में टेंशन होता है। ये हमारी हिस्ट्री की पहचान है, ये हमारी इंडियन हिस्ट्री का बड़ा यूनिक एस्पेक्ट है। इंडियन हिस्ट्री इज यूनिक बिकॉज वेन एवर वी हैव डिस्टर्बेंसेस, चाहे वो पैसे का डिस्टर्बेंसेस हो। 6th सेंचुरी में डिस्टर्बेंस कैसा? अर्बनाइजेशन आया है, मनी आ गया है, टेंशन हो गया है, आंसर आ गया कैसे रहना, बुद्ध ने बता दिया। यहाँ पर क्या डिस्टर्बेंस है? माइनॉरिटी स्टेट आ गया है, मेजॉरिटी गवर्न करेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। भक्ति सूफी आंदोलन क्या बताया आपको मालूम? कबीर नानक ने क्या बताया, रामानुज ने क्या बताया, सबको बताया। ईश्वर एक है, मनुष्य एक है। तो मोटिव क्या है? कैसे आप समाज को जोड़ा जाए अल्पसंख्यक समाज के साथ, वो गवर्न कर रहा है। ए माइनॉरिटी इज गवर्निंग मेजॉरिटी, उस समय ये इम्पॉसिबल है। एक कल्चर गायब हो जाएगा अगर भक्ति ये आंदोलन नहीं होता। तो सेकेंड रिनेसा को भी हमने फेस किया विदाउट ब्रेकडाउन। और आप देखें आज भी कल्चर वही है। तो इंडियन कल्चर यूनिक क्या, वो समय के हिसाब से अडेप्ट कर लेता है। हमारे यहाँ हमेशा रिनेसा हो जाता है, सेकेंड रिनेसा।
और थर्ड रेनेसां जो हमने बुक में पढ़ते हैं, हम एक ही को जानते हैं, हम कहते हैं भारत के इतिहास में एक ही आया है, बट आप यूपीएससी को बता दीजिए कि साहब एक नहीं आया, तीन आ चुके हैं। थर्ड रेनेसां कब आता है भाई? इसको हम R3 बोल रहे हैं, R1 R2 R3। फर्स्ट रेनेसां 6th सेंचुरी BC, सेकेंड रेनेसां 13th सेंचुरी BC AD सॉरी, एंड थर्ड रेनेसां 19th सेंचुरी। इसको R3 बोला गया है ना, शॉर्ट में लिखा गया भाई। इसके गॉडफादर कौन थे? राम मोहन रॉय। स्टार्ट राम मोहन ने किया, फिर दयानंद, सीरीज ऑफ थिंकर्स हैं और सबके पीछे कारण भी है, ध्यान दीजिएगा। पहले वाले का कारण आपको मालूम ही है, मुद्रा व्यवस्था, नगर व्यवस्था, तनाव। सेकंड, अल्पसंख्यक शासन कर रहा है, माइनॉरिटी क्लास इज गवर्निंग मेजॉरिटी। इम्पॉसिबल है जब तक भाईचारा और बंधुत्व की भावना ना आए। थर्ड में प्रॉब्लम क्या? ये थर्ड वाला तो बड़ा खतरनाक टाइप का है, मतलब बहुत चैलेंजिंग रेनेसां है। यहाँ पर एक इंग्लिश कंपनी ने भारत को जीत लिया है, जीता ही नहीं है। इससे पहले आक्रमण कौन करता था? राजा लोग करते थे। ये कंपनी का आक्रमण है। प्लासी बक्सर आपने पढ़ा सुना होगा। और कब हुआ प्लासी बक्सर बताइए? कुछ वर्ष बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो याद होने चाहिए, आप तारीख भी याद होनी चाहिए, पढ़ेंगे आप आगे। तो ये ईयर टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, प्लासी एंड बक्सर। और यहाँ से भारत का इतिहास एक नए टर्निंग पॉइंट पर आएगा, आधुनिक इतिहास धीरे स्टार्ट हो जाएगा। और इंग्लिश कंपनी आपने पढ़ा हो, कब भारत में आगमन कब हुआ था? 1608 में हुआ था आगमन, यहाँ पर हुआ है। और प्लासी का युद्ध कब हो रहा आपने देखा? 150 साल बाद, 150 ईयर्स। तो अभी आगे पढ़ेंगे तो इसमें फिर हम लोग चर्चा करेंगे तो कुछ और चले जाए, कहीं और चले जाएंगे फिर ना। तो शॉर्ट में सुन लीजिए बस, ये प्लासी बक्सर हो जाता है। फिर एक इंग्लिश कंपनी, ये भारत के इतिहास में पहली अजूबी घटना हो रही है, एक कंपनी भारत में राज करने जा रही है। और कंपनी का नाम ही आप समझ रहे हैं कि कंपनी का मतलब उपनिवेशवाद का सिद्धांत आ जाएगा। उपनिवेश का कॉलोनिज्म आप सुना है ना, कॉलोनिज्म। ये हिस्ट्री क्या है? आप कहते हैं भारत ब्रिटेन का राज नहीं बना है, ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया है। पहली बार एक वर्ड आता है उपनिवेश। उपनिवेश का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आप मीनिंग देखेंगे, इकोनॉमिक जनरेशन टेरिटरीज, आर्थिक उत्पादन के केंद्र। भारत ब्रिटेन का राज नहीं है, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है। मतलब उसको इसे संभाला गया पैसा निकालने के लिए। उसके पीछे कारण क्या आप बाद में पढ़ेंगे, संक्षेप में सुन लीजिए। इन 150 साल में क्या हुआ था? क्यों भाई 150 ईयर से कंपनी का भारत में आगमन, प्लासी का युद्ध। अच्छा, ये क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है, थोड़ा घबराइएगा मत, ये थोड़ा समझाने के लिए है, इसका पर्पस वो नहीं है। क्लास ना फॉर्मल क्लास नहीं हो रही। तो एक थोड़ा सा एग्जाम्पल सुनिएगा यहाँ पर। कंपनी का आगमन ना, अराइवल कब हुआ? 1608। विक्ट्री एट प्लासी एंड बक्सर सामने लिखा हुआ है। कैन यू टेल मी इन दिस 150 years द ट्रेड एंड कॉमर्स विच इंडिया वाज हैविंग विद द ब्रिटेन वाज इन फेवर ऑफ इंडिया और फेवर ऑफ ब्रिटेन? सोच के बताइएगा। हाँ, फेवर ऑफ इंडिया बोला जाएगा। पहले की बात हो रही है। इन 150 सालों में, प्लासी के पहले की बात हो रही है। ये 150 ईयर्स है, ऑलमोस्ट 150 ईयर्स है। 150 साल बड़ा लंबा काल होता है। इंडिया वॉज हैविंग ए फेवरेबल ट्रेड विद द वेस्ट एंड ब्रिटेन। कंपनी व्यापार तो कर रही है, फायदा लेकिन भारत को हो रहा है। भाई सूती, आपको मालूम होगा, लघु कुटीर उद्योग जो होते हैं ये पॉपुलेशन बेस्ड उद्योग होते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होते हैं पॉपुलेशन बेस्ड होते हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा तो आप नंबर 1 पे हो ही जाएंगे। तो कंपनी इज कैरिंग द इंडियन टेक्सटाइल, स्पाइसेस, आइवरीज, वट एवर वी आर हैविंग, उसको यूरोप में बेच रही है। लेकिन ये ट्रेड भारत के पक्ष में बहुत ज़्यादा है। और आपको आश्चर्य होगा कि इस व्यापार के लगभग 100 साल बाद, हालांकि 1702 है फिर भी आप 100 साल बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट आफ्टर 100 ईयर्स पार्लियामेंट में एक अधिवेशन बुलाया जाता है इसी मुद्दे पर। तो कंपनी को जब भारत में व्यापार वाणिज्य करते हुए 100 साल बीत जाता है। कंपनी का व्यापार कैसे कर रही थी? भारत के सूती वस्त्र, मसाले और जो भी उत्पाद हैं लघु कुटीर उद्योग के, उनको खरीदने के लिए दे वर ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर। वो भारत में सोना चांदी के बदले ये सब मसाले कपड़े खरीदते थे। और आप इमेजिन कीजिए इन 100 सालों में भारत में कितना सोना चांदी आ गया होगा। तो दे वर परचेजिंग नॉट ऑफ करेंसी, वो गोल्ड और सिल्वर के माध्यम से खरीदते थे। तो संसद में एक सत्र बुलाया गया है, उसमें चर्चा का विषय क्या है कि ये क्या हो रहा है भाई, 100 साल बीत चुके हैं, अब आगे क्या होना है। आपको मालूम है ये संसद में चर्चा होती है। कंपनी को व्यापार करने के लिए भेजा गया भारत में, ये तो लेकिन हमारे देश से सोना चांदी जा रहा है। तो आपको आश्चर्य होगा, पार्लियामेंट ने प्रस्ताव पारित किया है, ऐसा करते हैं कि इस पर आयात कर लगा देते हैं। तो फर्स्ट टाइम इन द ब्रिटिश हिस्ट्री द पार्लियामेंट हैड पास अ रेजोल्यूशन
टू इम्पोज हैवी इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन द इंडियन इम्पोर्ट्स। उनके लिए क्या हो जाएगा, उनके लिए इम्पोर्ट हो जाएगा, हमारे लिए एक्सपोर्ट, हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहली बार संसद ने इस पर आयात कर लगाया। लेकिन आपको मालूम होगा आयात कर कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, भारत को जीत लीजिए, आप ध्यान दीजिएगा, उसके 50 साल बाद 52 साल बाद भारत जीत लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं प्लासी की विजय आकस्मिक विजय नहीं है, इट इज़ नॉट ए रैंडम विक्ट्री, वो बाकायदा सब प्लान है। तो ठीक है, काम की चीज़ पर आइए। देखिए इसका द विक्ट्री ऑफ इंग्लिश कंपनी वॉज ए यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज फर्स्ट टाइम इंडिया वॉज नॉट वॉन बाय द किंग, इट वॉज वॉन बाय कंपनी विच वॉज इन इंडिया फॉर द लास्ट 150 ईयर्स एंड हैड ड्रेन्ड इट्स वेल्थ इन इंडिया। अब उसकी भरपाई कैसे करेंगे, उनको मालूम है कैसे करना है। इस देश ने हमारा बहुत सोना चांदी लिया है, भारत ने, इसका हम शोषण अच्छी तरह करेंगे। और आप ध्यान दीजिएगा, इसके बाद कंपनी धीरे से भारत के संपूर्ण व्यापार वाणिज्य पर मोनोपोली करती है, अधिकार रखती है, और लघु कुटीर उद्योग चाहे कृषि हो सबका शोषण स्टार्ट होगा। तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। हमारी इकोनॉमी गॉट डिप्राइव, एग्रीकल्चर, SSI, भारत एक कृषि प्रधान देश था, वो भी बड़ा बहुत दरिद्र हो जाएगा। तो चाहे लघु कुटीर उद्योग हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, भूमि हमारी अनुपजाऊ हो जाएगी। पढ़ेंगे आप आगे जाकर। तो कुल मिलाकर संक्षेप में कहा जाए, इकोनॉमी भारत की ऋण हो जाती है, खराब कर दी जाती है। इसके अलावा पॉलिटी भी आपको मालूम होगा, पॉलिटी भी आपने खो दिया। जब प्लासी बक्सर के बाद क्या होता है, इंग्लिश कंपनी बिकेम द मास्टर ऑफ इंडिया। तो सी हाउ वी कैन से लाइक दिस विक्ट्री इज यूनिक इन द वे फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इंग्लिश कंपनी हैड इन्वेंटेड इंडिया। इसके पहले के आक्रमण में आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसके पहले भारत में जो भी आक्रमण हुए हैं उसकी विशेषता क्या रही है, उन सबका भारतीयकरण हो गया है। चाहे प्राचीन काल में देखें आप, मध्यकाल में देखें, कम से कम मध्यकाल में भी जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए उनका भी कम से कम भौगोलिक भारतीयकरण हो गया। बाबर की पहचान भारत जुड़ जाती है। तो एंशिएंट मेडिवल में क्या देखते हैं आप, जो भी आक्रमणकारी आते हैं, वट एवर इन्वेडर्स हैड केम इन द एंशिएंट मेडिवल इंडिया दे गॉट इंडियनाइज्ड। इन एंशिएंट इंडिया में क्या होता है, एंशिएंट प्राचीन की बात की जाए, दे वर इंडियनाइज्ड होलिस्टिकली, मतलब कल्चर से भी और ज्योग्राफिकली भी। मेडिवल में क्या होता है, दे गॉट इंडियनाइज्ड ज्योग्राफिकली आल्दो दे मेंटेन देयर इस्लामिक कल्चर। बट ये बड़े खतरनाक आक्रमणकारी है कंपनी। इनका उद्देश्य तो भारत का शोषण करना है। दे नेवर गॉट इंडियनाइज्ड नाइदर ज्योग्राफिकली, नाइदर कल्चरली, नाइदर पॉलिटिकली। इवन देन दे वर गवर्निंग इंडिया। क्यों गवर्न कर रहा है, उपनिवेश का शोषण करना है भाई। गवर्न तो कर रहा है लेकिन उद्देश्य गवर्न करना नहीं है। तो बड़ा अजीब सी चीज़ है, आप राज्य कर रहे हैं लेकिन आपका उद्देश्य राज करना नहीं है, बस वो एक माध्यम है, वो मीन्स है। गवर्नेंस वॉज ए मीन टू ड्रेन द वेल्थ ऑफ इंडिया। इंग्लिश कंपनी गवर्न क्यों कर रही है, भाई पैसा निकालना है। 150 साल के इतिहास में कुल मिलाकर संक्षेप में कहा जाए, दिस विक्ट्री ऑफ दिस प्लासी एंड बक्सर वॉज ए टर्निंग पॉइंट बिकॉज इंडिया लॉस्ट इट्स पॉलिटी। भारत, हमने अपनी राज्य व्यवस्था खो दी, इकोनॉमी भी खो दी। और थर्ड चीज़ क्या है, हमारे ऊपर ईसाई धर्म का प्रचार होगा, कल्चर भी इंक्रोचमेंट हो रहा है। तो ये आक्रमण बड़ा खतरनाक आक्रमण है। हमारी अर्थव्यवस्था भी खो गई, हमारी राज्य व्यवस्था खो गई, और हमारे पास सांस्कृतिक अतिक्रमण, कल्चरल इंक्रोचमेंट भी हो रहा है। इससे जघन्य आक्रमण क्या होगा, इसका तो ये रिनेसा थोड़ा सा पॉपुलर ज़्यादा होगा। और उसकी शुरुआत होती है 19वीं सेंचुरी में। इसको R3 बोला गया, राम मोहन रॉय को माना जाता है जन्मदाता माना जाता है। फिर हमें सीरीज में मिलता है, और शायद यही कारण है भारतीय संस्कृति का क्षय क्यों नहीं हुआ। यूपीएससी ने आज से 3 या 4 साल 2016 या 17 में पूछा था ये, और इसी का रूप एक क्वेश्चन एक बार 18 में भी आया है। वाई इंडियन कल्चर हैज़ नॉट डिकेड फॉर द लास्ट 5000 ईयर्स एंड अदर कंटेम्परेरी कल्चर्स हैड कोलैप्स्ड। क्या कारण है भारतीय संस्कृति का क्षय पिछले 5-8 वर्षों में नहीं हुआ है, जबकि समकालीन संस्कृतियाँ सब म्यूजियम में है समय। कारण बड़ा सिंपल सा है, हमारे यहाँ जब भी तनाव होता है एक आंसर आ जाता है, इसको हम पुनर्जागरण कहते हैं। इसको आप आंसर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देखा आपने, ये पुनर्जागरण है, और यहाँ पर एक बड़ी चीज़ निकल के आती है। इसी पुनर्जागरण ने आपको वो चीज़ दिया है। पुनर्जागरण क्यों होता है, आपको मालूम है क्यों होता है? सिंपल सा आंसर है, सोसाइटी में एक स्टेबल करना, सोसाइटी को स्टेबलाइज करना। यहाँ पर आपको ध्यान देंगे, आपको आश्चर्य होगा। एक क्वेश्चन पूछा, जरा बताइए स्वराज शब्द का जन्मदाता कौन था? हु हैड कॉइन्ड द वर्ड स्वराज? विकल्प आपको दिया जा रहा है, क्वेश्चन समझ गए आप? हु हैड कॉइन्ड द वर्ड स्वराज? पहला विकल्प आपके सामने जो है तिलक है, फिर विवेकानंद है, और दयानंद है, और चौथा इनमें से कोई नहीं, दयानंद है। और कोई आंसर है भाई? दयानंद ही होगा।
तिलक ने कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से, दयानंद सही है आपका। और लगभग कब की बात है? 1870s। 1870s में हिंदी के शब्दकोश में पहली बार एक शब्द आ रहा है स्वराज। आप ध्यान दीजिए, जो ये बुद्धिजीवी लोग होते हैं, चाहे बुद्ध हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, ये समाज के तनाव को पढ़ते हैं, उसका उत्तर बताते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तनाव किस बात का है? ब्रिटिश काल में ये तो बड़ा जघन आक्रमण हुआ भाई, आपकी अर्थव्यवस्था खो गई है, राजव्यवस्था खो गई है। तो इन्होंने एक नया शब्द बनाया दयानंद ने 1870s के दशक में, स्वराज बनाया, शासन में भागीदारी। ऐसे एक शब्द का निर्माण यहाँ पूरा जागरण में और हुआ, उसका नाम है स्वदेशी। पहली बार इस शब्द का प्रयोग जो है मराठी या बॉम्बे के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख ने किया था 1870s में। इसके पीछे भी कारण क्या है? हमने अपनी अर्थव्यवस्था खो दी है, तो हमको स्वदेशी करना, मतलब हमको अपने उद्योगों को फिर से जीवित करना है। तो कहीं ना कहीं इस कल्चर, इस पुनर्जागरण ने हमारी संस्कृति को बचा लिया। तो भारतीय संस्कृति का क्षय क्यों नहीं हो पाया? सीधा जवाब है कि भारतीय संस्कृति एक अजीबी संस्कृति है विश्व के इतिहास में। इसमें जब भी कोई अतिक्रमण होता है, ये अपने आप को उस पथी से निकाल लेती है, अडेप्ट कर लेती है। और संस्कृतियों में ये गुण नहीं है। अदर कल्चर्स वर नॉट हैविंग दीज एलिमेंट्स, तो वी कैन से लाइक दिस, Indian culture is unique in the way it has the elements of adaptability and flexibility. Adaptability and flexibility. And we have witnessed 3 renaissance. So whenever we have challenges, we have answers also. That is why we had not decayed. तो कुल मिला के आप समझ गए कि ये 3 रेनेसा होते हैं और इसको आप ऐसे जोड़ सकते थे। तो ठीक है, हमने इसको चर्चा कर लिया इसमें। अब हम एंशिएंट को देखा आपने। अच्छा, स्पीड को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है आप में? कुछ स्पीड ठीक है, स्लो करना है या ठीक है? ठीक है, ये आदत है। हमने 2002 से पढ़ाना स्टार्ट किया था लखनऊ से। हम बेसिकली लखनऊ को बिलोंग करते हैं और ये 18 साल में स्पीड इतनी स्लो हुई है भैया ना। कुछ लोग कहते हैं सर इतना स्पीड है तो पहले लेक्चर कैसा होगा? वास्तव में पहला लेक्चर तो बड़ा चैलेंजिंग था विद्यार्थियों के लिए। लखनऊ में हमने उस समय लखनऊ में मार्केट धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, तो कोचिंग में पहली बार मैंने क्लास लिया तो मैनेजमेंट ने कहा सर लेक्चर तो बहुत अच्छा है लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। हम 2 मिनट तो हंसते लगे। हमने कहा कौन सा लेक्चर है भैया? आप लेक्चर तो अच्छा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने अगले दिन वहाँ पर टेप रिकॉर्डर रखवाया था और मैं खुद सरप्राइज़ करा था मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। मतलब आवाज़ इतनी फास्ट था, क्योंकि खुद विद्यार्थी थे। यूपीएससी का मेरा लास्ट 2001 में पूरा हुआ था। तो उस समय क्या था, जो शरीर में भरा उसको पूरा निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो निकलता चला गया। लेकिन अब बहुत धीरे कर दिया। मैं कहा से अब दिक्कत नहीं आ रही हो? क्यों भाई, 18 साल हो चुका है, दिक्कत तो नहीं है? पीछे बताइए, कुछ स्पीड स्लो किया जाए स्लो? अच्छा ठीक है, करते हैं भाई। तो धीरे धीरे अभी का पहला दिन है, आप समझते हैं ना, एक एसेंट भी होता है। जब आप चीज़ों को पकड़ना सीखते हैं तो धीरे धीरे आप उसमें एडजस्ट कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चर्चा की गई कैसे पढ़ना चाहिए। अब हम मॉडर्न इंडिया का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये तो एंशिएंट का एग्जाम्पल लिया गया। तो कुल मिला के इतिहास क्या होता है? क्रमवार संकलन ही नहीं है, वो तो है ही। एक है यूपीएससी में कौन सा इतिहास देखा जा रहा है? परिवर्तन के बल, फोर्सेज ऑफ चेंजेस, फोर्सेज ऑफ कन्फ्लिक्ट। कैसे इसको जोड़ेंगे, इसको आप जोड़िए। और किस चैप्टर में क्या परिवर्तन आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसको जोड़ लेंगे। आप जोड़ना सीख जाएंगे, अभ्यास करेंगे, सीख जाएंगे। आप विश्वास करें, क्वेश्चन कोई भी हो कम से कम आप 100 शब्द लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कैसे लिखना है। जैसे आप देखा लोहे को हमने कैसे जोड़ा है, आयरन के बेस पे हमने लगभग पूरा एंशिएंट और क्या नाम है ये ऋग्वैदिक पीरियड, लेटरवैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड जोड़ दिया है। अब हम इसमें आते हैं ब्रिटिश इंडिया में, मॉडर्न इंडिया में आते हैं, ब्रिटिश हिस्ट्री में आते हैं। इसमें एक बढ़िया सा एग्जाम्पल आपके सामने है। लगभग कितने साल का इतिहास है बताइए, जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं? लगभग कितने साल का है अप्रोक्सीमेट बताइए? 200 है ना, 190 है भाई। इसको हम अगर प्लासी से मान लें तो यहाँ से मान सकते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 200 ईयर्स है। 190 ईयर्स है, 200 ईयर्स। और यूपीएससी में आपको मालूम होगा प्रीलिम्स में भी, अच्छा इस बार 19 क्वेश्चन आए थे, 19 क्वेश्चन थे, 19 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन पूरा इससे थे, कोई डाउट नहीं। लगभग 50% हो जाता है। और मेंस में भी 6 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 3 क्वेश्चन आता ही आता है। इस बार हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं आया था। तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक बड़ा हिस्ट्री में काफ़ी बड़ा हैवी शेयर है, 50% शेयर है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो। उसके पीछे लॉजिक क्या बताइए, रीज़न क्या है? यूपीएससी ने इसको वेटेज क्यों दे रखा है? 50% के आसपास है भाई। एंशिएंट भी है, मेडिवल भी है। जीएस की बात की जा रही है, ऑप्शन की बात तो नहीं की जा रही। जो ऑप्शन सब पढ़ते हैं आप मालूम, एंशिएंट पढ़ेंगे, मेडिवल पढ़ेंगे, मॉडर्न पढ़ेंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अब तो खैर फिर भी 10 हो गया। आज से जो है जब पैटर्न नहीं बदला गया था, ये 2013-12 से पहले की बात हो रही है, तो उस समय तो पूरा मॉडर्न ही आती थी। 2-4 क्वेश्चन एंशिएंट मेडिवल से आते थे। बताइए रीज़न क्या हो सकता है?
अगर 19 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 9-10 क्वेश्चन तो आना ही आना है। 50% हम 200 साल को देते हैं, 50% हम 200 साल को दे रहे हैं। मेडिकल हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है? लगभग 1200 से मान लीजिए ना, 1200 से मान लीजिए, हाँ लगभग प्लासी तक। कितने साल हो गए भाई? 600 साल हो जाते हैं, 550-600 साल मान लीजिए। और एंशिएंट आपको मालूम ही है, और आप इंडस वैली से स्टार्ट करेंगे तो भी ज़्यादा हो जाता है। इंडस वैली से भी मानते हैं रोमन हिस्ट्री। इंडस वैली कहाँ से स्टार्ट होती है? ये BC है भाई। और ये कितने साल हो जाते हैं? जोड़ के बताइए कितना हो जाएगा। लास्ट वाला AD है। तो ये एंशिएंट का हम एक फॉर्मल हिस्ट्री, BC में हम उल्टा चलते हैं। BC मतलब 2500 BC है, हाँ। तो ये आप 37 ऑलमोस्ट, हर एक राउंड फिगर में आप 48 बोल सकते हैं, जो भी है। तो अगर कालक्रम के हिसाब से देखें तो कायदे में UPSC को यहाँ से ज़्यादा पूछना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कहीं ना कहीं आज जो हमारा स्ट्रक्चर है पूरा वो उसी की देन है। तो ये अप्लाइड भी है कि हमें जो वर्तमान में है, तो इसमें है ना, तो आप समझ गए रेशो ऐसा बटा हुआ जो अप्लाइड से हमें स्कीम। आज पूरा स्ट्रक्चर भारत का यही है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जुडिशल स्ट्रक्चर, इवन एजुकेशन स्ट्रक्चर, सब वही तो है, ब्रिटिश जो लेके आए। तो ये रीज़न है। तो संक्षेप में देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते समय आपके मन में क्या चीज़ आनी चाहिए? द होल मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज रिवॉल्विंग इनटू दीज 3 सर्कल्स। पूरा इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो जब पढ़ते समय इस पर्सपेक्टिव को बिल्कुल क्लियर रखिए। आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन इसलिए सही हो जाएंगे, आपको ये मालूम है पूरा ये इतिहास 3 सर्कल में घूम रहा है। फर्स्ट, आपको मालूम है इंडिया अब उपनिवेश बन चुका है, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। तो जब भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें तो आपको 3 चीज़ का ओरिएंटेशन क्लियर होगा। तो हमारा कहना है, भले आपने कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी 2-3 क्वेश्चन इसके सही हो जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट मालूम है इसका ये क्या होता है, आप लॉजिक लगाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट, पर्सपेक्टिव ऑफ कॉलोनियलिज्म, हिंदी में उपनिवेशवाद। और इसका आपको मालूम है कि न्यूटन का 3rd लॉ क्या होता है भाई? एक्शन हैज़ इक्वल अपोजिट रिएक्शन। वो तो न्यूटन्स लॉ होता है, वो तो साइंस का नियम है, हिस्ट्री का नियम है। ये अब मनुष्य का जो प्रतिक्रिया कैसी होती है वो डबल ट्रिपल भी हो सकती है। न्यूटन कहता है कि प्रत्येक क्रिया की ना बराबर और ना इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। हिस्ट्री में क्या होगा? वो डबल और ट्रिपल भी हो सकता है। ये मानव इतिहास है। तो यहाँ क्या होगा? रिएक्शन देखिएगा, इसकी कॉलोनिज्म है, इसका प्रतिक्रिया होगी। ये क्या लिखा भाई? और जैसे एक मूवी में क्या होता है, हर मूवी में आते हीरो भी होता है, विलेन भी होता है। कोई मूवी ऐसी नहीं देखोगे जहाँ विलेन ना हो। क्यों भाई? आप देखें, शायद हो सकता है आगे बन जाए, लेकिन मूवी में वैसा हीरो भी होगा, विलेन। तो वही है, भारत का इतिहास एक ऐसा है, हीरो भी होता है, विलेन भी होता है। जब हीरो, नेशनलिज्म को हम हीरो कह सकते हैं, तो किसका उद्देश्य क्या है? देश को जोड़ना, आज़ाद कराना। इसका मोटिव क्या है? यूनिटी ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। साथ में विलेन भी आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं, इसकी हिंदी क्या होती है भाई? नहीं, सांप्रदायवाद। इसको हम फ्रीडम मूवमेंट का हीरो बोल सकते हैं। इसका उद्देश्य है भारत को बांटना, उसका उद्देश्य है भारत को जोड़ना और आज़ाद करना। बहुत इसके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं। और इतिहास में कुछ नहीं, जो भी आप पढ़ते हैं 200 साल में, आप इसको पढ़ते हैं, आप इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, जो भी होगा इसका सब पार्ट्स होगा। तो अगर माइंड में होता कि हम लोग हिस्ट्री में कैसे पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में अक्सर हमने देखा कि लोग गवर्नर जनरल को पढ़ते चले जाते हैं। सारे कार्यकाल पढ़ लिए आपने, या आपने कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ लिए, या आपने सारे आंदोलन पढ़ लिए। लेकिन यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इसको पढ़ने से शायद आप 2-3 क्वेश्चन सही कर लेंगे, लेकिन अगर आपने इस पर्सपेक्टिव से पढ़ा है तो क्वेश्चन में अगर डाउट भी होता तो भी आप सही कर ले जाते हैं। आपको मालूम है क्या पढ़ना है इसमें। ये क्रिया है, और ये आपने पढ़ाई है। न्यूटन्स लॉ कहता है कि इक्वल होता है, यहाँ पर डबल ट्रिपल हो जाता है। ये प्रतिक्रियाएं है, राष्ट्रवाद है, संप्रदायवाद। और ये दुर्भाग्य क्या है, यहाँ पर हीरो का विलन का जन्म एक साथ होता है। राष्ट्रवाद भी 19वीं सदी के अंत में आता है। भाई कांग्रेस कब बनती है? 85 के आसपास बनती है, एंड ऑफ 19th सेंचुरी। और ये भी सहयोग से उसी के आसपास है। दोनों का जन्म दुर्भाग्यवश, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट द फोर्सेज ऑफ नेशनलिज्म एंड फोर्सेज ऑफ कम्युनिज्म हैड टेकन बर्थ साइमल्टेनियसली।
तो मॉडर्न हिस्ट्री में पहली चीज माइंड में सेट करिए, हम पढ़ते क्या है, हम इन्हीं तीनों चीज़ों का विस्तार पढ़ते हैं। ये कौन सा इतिहास है, अंग्रेज भारत में क्या कर रहे हैं। भाई आपको मालूम है उपनिवेश का मतलब ही है, शाब्दिक अर्थ क्या है, इकोनॉमिक जनरेशन टेरिटरीज। व्हाट इज कॉलोनिज्म? इकोनॉमिक जनरेशन टेरिटरीज, आर्थिक उत्पादन के केंद्र, जिसका उद्देश्य क्या होता है, मात्र देश के आर्थिक हितों की पूर्ति करना, टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ मदर कंट्री, ये बोला जाता है। और तो यहां पर कॉलोनिज्म को आप देखेंगे, अंग्रेजों की पूरे 200 साल के इतिहास में जो भी पॉलिसी बनेगी उसका उद्देश्य, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सपोज क्वेश्चन इज अराइज whether you can justify Dalhousie was an architect of modern India। ये यूपीएससी ने जीएस में क्वेश्चन पूछा था आज से 4-5 साल पहले, फिर से रिपीट करते हैं, कैन यू जस्टिफाई और कैन यू आर यू एग्री विद द पॉइंट दैट Dalhousie was an architect of modern India, ब्रिटिश इंडिया, मॉडर्न इंडिया। क्वेश्चन समझ गए आप? Dalhousie को क्या भारत, आधुनिक भारत का निर्माता माना जा सकता है? देखिए हिस्ट्री में एक चीज़ याद रखिए, हिस्ट्री विज्ञान नहीं है। विज्ञान में क्या होता है, आपने कहा फोर्स बराबर एम ए होता है, या आपने कहा इक्वेशन ऑफ मोशन ये होता है, जो भी है। गणित, इतिहास गणित भी नहीं, गणित में क्या होता है, एक ही उत्तर होता है कि भैया हाँ होगा, हाँ नहीं। इतिहास में याद रखिए यहाँ पर हाँ भी बोलना है, नहीं भी बोलना है, क्योंकि इतिहास क्या होता है, मानव का अध्ययन मानव द्वारा, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बाय ए ह्यूमन। ह्यूमन बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, वी कैन नॉट से दिस इज द आंसर। तो जस्ट माइंड इट, यूपीएससी के आंसर राइटिंग में कभी भी कंक्लूजन की बात की जा रही, कंक्लूजन में कभी भी, निष्कर्ष में कभी भी क्लोज्ड एंडेड आंसर मत दीजिए। आंसर आपका हमेशा ओपन एंडेड होना चाहिए, उसमें सुधार के स्कोप होना चाहिए। यू शुड नेवर हैव ए स्वीपिंग स्टेटमेंट, आपको ये नहीं कहना चाहिए यही होगा, आप कभी ये नहीं बोल सकते। इतिहास है भाई, आप कहेंगे हाँ संभावना इसकी लगती है, ये भी हो सकता है। तो पहली चीज़ को माइंड में सेट कर लीजिए, इतिहास के उत्तर लेखन में, निष्कर्ष में कभी भी आप एक तरफा उत्तर मत लिखिए। हाँ संभावना इसकी ज़्यादा लगती है, आप ये बोलेंगे, बट यू कैनॉट से लाइक दिस इज द ओनली आंसर। ऐसे यहाँ भी है। तो हाँ, तो इसी क्वेश्चन का जवाब बताइए। आपको Dalhousie आधुनिक भारत का निर्माता था, क्या आप सहमत हैं इससे? Dalhousie वॉज एन आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? सिर्फ यस और नो बताइए। कितने लोग यस वाले, यस वाले हाथ खड़े करें। हाउ मेनी यू एग्री विद द यस? बाकी सब नो है क्या भैया? अच्छा आपका पार्शियल है, तो पार्शियल वाले आप हो गए। बाकी लोग क्या भाई, यस नो के अलावा, पार्शियल के अलावा कुछ होता है कुछ? क्या आप बताइए, पीछे से बताइए। Dalhousie वॉज एन आर्किटेक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। भाई यूपीएससी के लिए आपको बहुत एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो उसमें जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। भाई गलत होगा सही हो, दो ही चीज़ तो होगा। बोलिए भाई क्या लग रहा है आपको? हाउ मैनी यू एग्री विद द स्टेटमेंट इट इज़ यस और नो और पार्शली बोथ आर यस एंड नो? बताइए इसमें, इधर स्लो से बताइए। आप लोग बताइए पहले, क्या यस है नो है? जानता था तो कोई बात नहीं, तब तो ठीक है। अच्छा हिस्ट्री आप लोगों ने कहीं, अगर दो ही लोग हैं हिस्ट्री में, यानी किसी का हिस्ट्री रहा है, बैकग्राउंड नहीं रहा है किसी का? अच्छा आप दो लोगों का तो रहा है। आप लोग बताइए, आप तो बताइए, उन्होंने बता दिया भाई यस नो है, पार्शली यस और नो दोनों है। अच्छा एनीबडी बैक में आंसर बताएं। ठीक है, तो Dalhousie के बारे में सुनिएगा। Dalhousie 1848-56 में था। उसी काल में क्या होता है, भारत में रेलवेज आता है, पोस्ट टेलीग्राफ आता है, और सिविल सर्विस जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की फाउंडेशन रखी जाती है 1853, फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विस। ओपन मतलब सब बैठ सकते हैं। एक परीक्षा ऐसी बनाई जाएगी, कोई दे नहीं पाएगा। लंदन में परीक्षा होगी, जहाज में जाएंगे जो पढ़ा पहले भूल जाएंगे। क्यों भाई, बड़े घर के लोग जाएंगे, टैगोर फैमिली के लोग जाएंगे, वही लोग जाएंगे। तो जो